ओम या एक्सो क्षीणेर्मनुष्यो दृश्येत् एषो आत्मेनि होवाचैत अमृतं महय मेतद्दत् ब्रह्मेति तद्योद्यप्योऽस्मिन् सर्पेर्दोकम् वासिंचन्ति वर्त्मनि एव गच्छति स एव पुरुषोत्तमः सत्ता ब्रह्मा। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। छन्दोग्यर अपूर्वस्तवना यही सही सत्ता ब्रह्म सचिदाघन विग्रह जे समस्त पूरणकारी सत्ता रूपरे अमृत दान करिवा पाई दधिरे सर्पी भली लहुणी भली सी प्रतिटी हतचेतन जीव प्राण भितरे अमृतायन सिंचन करती तांकर श्रीपाद पद्मंतले कोटि कोटि प्रणाम। पुरुषोत्तम श्रीपाद पद्मंतले योगोस्तिमितलोचनं श्वेतांबरं सुशोभितं पुराण पुरुषोत्तमं जगद्गुरुर्योगेश्वरं लीलाकलितादि मानुषितनो भूमि भारापभूत् कैवल्यद भक्तवत्सलो स्वयंभो श्रीयुग पुरुषोत्तम। हे कैवल्यद भक्तवत्सल लोकोद्धार शक्ति पाई आपणकर ब्राह्मी तनुरे जोगस्थिमित लोचन रे सर्वदा श्वेतांबर हुई हे पुराण पुरुषोत्तम जोगेश्वर आपण लीला को आपण परिकलना करबा पाई लीला कलित मानुषी तनु गोटे मानुषी तनु रूपरे मर्त्यावरण कर आपण श्रीपाद पद्मंतले कोटि कोटि प्रणाम। श्रीधीकृति देवश्च परमा प्रकृति रूपम लीला विधातो कारुण्य कृपामूर्ति सरसी वल्लभे नमः। श्रीधीकृति धारण करी लीला विलास मानुषी तनु धारण करी हे कृपामयी कृपा दान करबा भी परमा प्रकृति सरसी देवी रूपरे आपण श्रीपाद पद्मंतले कोटि कोटि प्रणाम। त्वं पावक पुरुषं ब्रह्म नित्यो नाद बिंदु समन्विको जुगोद्धार लीलार्थाये आविर्भूतम् आद्याचार्यं। हे आद्याचार्य जो उद्धार लीला को आहुरी विस्तृत करबा पाई नाद बिंदुर समन्वित पुरुषोत्तम धारे आपण आविर्भूत हुई लोकोद्धार रे भक्त जन मानस रे चीर नमस्य आपण श्रीपाद पद्मंतले कोटि कोटि प्रणाम। रोग शोको विदूरित ग्रह दोषो विनाशकम् पुरुषात्मज पौपुत्रम् आचार्यो अशोकानंदये त्वं नमः। हे पुरुषोत्तमंकर पौपुत्र पौत्र आचार्य रूपरे मनुष्यर रोग शोक दुख विदूरित करी आपण अशोक आनंद रूपरे भक्त मान भितरे इष्टि प्राण संचार करती आपण श्रीपाद पद्मंतले कोटि कोटि प्रणाम। लीला दर्शनर द्वितीय अनुवाक्ति है विसर्ग लीला। पुरुषोत्तमर लीला कौन लीयते जीवन कर्म कुंडली खंडयते च स्वधाम्ने स्थापयति इति लीला। जीवर कर्म कुंडल खंडन करिबा पाई ताकू निजर स्वरूप आनंद घन धाम रे स्थापित करिबा पाई
ମର୍ତ୍ୟାବତରଣ ରୂପରେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗର ହତଚେତନ ଜୀବ ମାନସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସିଏ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକ, କାରଣ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାର ପ୍ରକୃତିଜୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବୈଷମ୍ୟର ପୁଣ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱତ ରଜ ତମ, ଏହି ତିନି ଦେବତାଙ୍କର ଉତ୍ସ ହେଲେ ସେଇ ଜଣେ ଏକଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟଂ ଶରଣଂ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିକା ଶକ୍ତିରେ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ମହେଶ୍ୱର। ବୃହତିତି ଗଚ୍ଛତିତି ଇତି ବ୍ରହ୍ମ। ମଣିଷର ଜୀବନର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ, ଭୂମରି ଭୂବାର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତି। ବିଶତି ଅଖିଳ ଆତ୍ମାନଂ ପରିପାଳୟତି ତ କଲ୍ୟାଣ ଧାବୟତି ଇତି ବିଷ୍ଣୁ। ଅଖିଳ ଆତ୍ମାକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, କଲ୍ୟାଣକୁ ବୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ରୁଦ୍ଧ ଦୁଃଖଂ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ଆନନ୍ଦୋ ଶକ୍ତି ପାୟତେ କର୍ମ କୁଣ୍ଡଳ ଖଣ୍ଡୟତି ଇତି ରୁଦ୍ର। ସେ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ତାର ତଥାକଥିତ ବୃତ୍ତିମାଳିନ ଚଳନୀକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ସେଇ ଏକ ତାଙ୍କର କୃପା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ନାଦରୂପୀ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଦୟାଳ ଦେଶରୁ କ୍ଷରିତ ଜୀବକୁ ବିଗତ କୁଣ୍ଠ କରିଥାନ୍ତି। ପରମ ଧାମରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭକ୍ତକୁ ପରମାନନ୍ଦ ଦାନ କରନ୍ତି। ଧାମ ସହିତ ନାମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଷ୍ଟରାଷ୍ଟଦାହ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ତଦା ହ୍ୟୁରୁକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବକାରଣ କାରଣମ୍ ବିଷ୍ଣୋର ଧାମଂ ପରଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ। ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମନ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ବା ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବକାରଣର କାରଣ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନୋତୋତି ପାଳୟତି, ଅନ୍ୟାୟ ରୂପରେ ଦୟାଳ ଦେଶର ସାକ୍ଷାତ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହିମାରେ ସମଷ୍ଟି ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟିର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଉପକ୍ରମଭୂତ ଭଗବତ ଲୀଳା ହିଁ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ଲୀଳା। ଏହି ବିସର୍ଗ ଲୀଳା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ଏକ ଔଚ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଲକ୍ଷଣ। ସାଧକ ପ୍ରାଣ ତଳେ କୃପାର ଏକ ନୂଆ ବିଳାସ ପ୍ରକାଶରେ ଆସେ। କୃପାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିନା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ଆକୁଳତା ବା ଅନୁକୂଳତା ସହିତ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ, ସୁପଥ ଓ କୁପଥକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଚ୍ୟୁତ ଚେତନାର ପ୍ରବାହ ହେଉଛି କୃପା। ବୃକ୍ଷର ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ମାଟିକୁ ସେ ନିଏ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ ସହିତ କେମିତି ମିଶେ, ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ପଶୁ କେଉଁ ଘାସ ଖାଏ, ଏହି ଭୋଜନ ଜୀବନର ସାଧନ ବା ମରଣର ଏହା କିପରି ଜଣାଯାଏ? ଖାଇବା, କରିବା, ନ କରିବା, ଜାଣିବା, ନ ଜାଣିବା ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଜଣାଯାଏ? ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ଜନନୀର କୃପା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତା ଭିତରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଗ୍ନିର ସ୍ପର୍ଶ ଦାହକ, ଆଉ ଜନନୀର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ବାହକ। ପାଦରେ ଚାଲିବା, ହାତରେ ଖାଇବା, ଶୋଷ ହେଲେ ପାଣି ପିଇବା ଏହିସବୁ ଇଷ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କୃପାର ବିଳାସ ମାତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଣୟନ ବା ନିର୍ମାଣର ଅବତରଣ ହୁଏ। ଜୀବନର ପ୍ରଣୟନ ହିଁ ମୂଳ ହେଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଏହା ବିନା ଜୀବଜଗତ ସବୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବସି କିଏ ସେ ଏପରି ଅନ୍ତରାଳ ଚାଲି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ କରାନ୍ତି। ଖାଲି ଉନ୍ମୁଖ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ତଃପ୍ରବିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଶାସନୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ।
এই প্রশাসনিক কৃপা হচ্ছে পুরুষোত্তমঙ্কর যুগোদ্ধার কৃপার মুখ্য উৎস। এই প্রশাসনিক শক্তি প্রতিটি জীবদেহরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হুয়ে सबु वस्तु व्यक्ति भावकु परस्पर विलक्षण विशेष रूप आकृति गुण धर्म स्वभाव को भिन्न भिन्न प्रकार उत्पादन स्मरण और संरक्षण करिवार योग्यता दी थाए। यही प्रशिक्षण कृपा या कह जाए साधना। यह पूर्ण पूर्व संस्कार को अनुगमन करि थाए। तेणु संस्कार को शुद्ध करिबा पाई पुरुषोत्तम संस्कार एकमात्र मनीषर अनुगमनीय एवं निजर अक्षय धारा नहीं नवीकरण करिबा करा जायते। विचार दृष्टि रे देखिबा को गले एही शक्ति कौनसी हेतु निमित्त बा प्रयोजन रे प्रेरित होई न थाए। देश काल पात्र अनुसारे जुगर चेतना अनुसारे जीवनर ग्रहण करिवार क्षमता अनुसारे से आसंती। या को कहा जाए वैशिष्ट पारिणी कृपा। अन्य नाम कहा जाए पारिब नहीं। यही एक प्रणयिनी कृपा कहा जाए। प्रणय प्रमत्त स्वामी बोली पुरुषोत्तम कहा जाए। यही प्रणयन धारा भितरे इष्ट अनिष्टर भाव थाए। इष्ट प्राप्ति रे इच्छा थाए, अनिष्ट परिहार करिवार इच्छा थाए। यही इच्छा नहीं अभिलाषिणी कृपार रूपरेक्ष। जी अभिलाष दियंती से प्राप्ति भी दियंती एवं ये प्राप्ति एवं अभिलाष देवा पाई सी जीव को से भाव में प्रचोदित करती। अतंत एथिरे तांकर आग्रह शक्ति रूपक कृपा थाए। यही आग्रह शक्ति कृपाटा शिष्य प्राण रे संचालित हुए आउ तांक प्राण रे अनुग्रह शक्तिर कृपा थाए। यही आग्रह आउ अनुग्रहर मिलन भीतर देई कृपाटी जीवन रे रूपवंत हो उठे। यही अभिलाषिनी कृपा उपरे घर गोटे अपूर्व सरल बाणी अच्छी। बाणी थी ईश्वरंकर इच्छा जेपरी सेपरी हेब, जेपरी हेब तुमे फसल तुमर सेपरी हेब जेपरी उर्वर भूमि। धर्म अर्थ काम किछि मनीषर दरकार। एथिपई लौकिक वैदिक कर्म दरकार। कर्मर करण उपकरण अधिकार दरकार। उपयुक्त स्थान और समय दरकार। सहायक और सामग्री दरकार। फल प्राप्ति शरीर योग्यता ज्ञान ए सबू नहीं किए आसे। ए सब को संक्षेप में कहा जाए जीवन तपस्या। ये जीवन देवता जीवन तपस्यार सुष्ठु परिचालन पाई मर्त्यावतरण करती। प्रभुंकर प्रापणी कृपार यही सबू भिन्न भिन्न रूप यह सर्वदा समस्त थाए किंतु प्रकाशित हुए समर्पित आत्मार देहरे। तेणु गुरुकरण समर्पकरण बा संयोगीकरण कथा। तेणु गीतार श्रीकृष्ण समत्वं योग मुच्यते। योग युक्तो भवार्जुन योग कर्मासु कौशलम शब्द भीतर गति। तेणु कहते नाहं प्रकाश सर्वत्र योग माया समावृत। मु सबुथिरे प्रकाशित हुए नहीं, मु योग माया रे आश्रित लाभ करिताए। एई योग माया कौन एवं ये जोगमाया को आम अपनुसरण करवा किपरि। यही मोहिनी आत्मार अनुक्षण प्रकाश शक्ति जीवन देवता समस्त को वैद्य रूप से सभी को लोभनीय जना पड़ा एक धारा दियंती। तो हूँ तार जीव को शिवरे परिणत करिवार कृपा। परिणामतः देवासुर संग्राम सृष्टि हुए। यही संग्राम रे कृपा भक्त प्रति उत्कर्षणी और अभक्त प्रति अपकर्षणी रूप से देखा दिए। दैत्यराज बलि को सर्वमात्मा समर्पण आउ भगवत वशीकरण हेतु यही शक्ति परिणत कराई देछि। प्रहलाद यही कृपा शक्ति को चिन्ही थिले। बलिर धर्मपत्नी मध्य यही मोहिनी कृपा काहाकू केउंठी केतेबेले जड़ ता बनई दिए आउ यही रोधुनी संचारण धारणा करे। कहा पाखरे मनरे विरोध उत्पन्न करी विरोधिनी शक्ति रूप से इष्टंग ठारू दूर रखे। पुणी कहा भितरे निजर स्मरणी दीप्त वैभव को देखिक मुग्ध कर दिए आउ प्रभुंकर सम्मुख रे पहुंचाई दिए। यह सेतेबेले अनुरोधनी शक्ति बा
अनुग्रह शक्ति रूप में रूपांतरित होता है। क्यों विलक्षण और विचक्षण रीति यही मोहिनी शक्ति संसार सृष्ट विभिन्न जीव समूह को विभिन्न प्रकृति जगाई प्रवर्तनीय करिथाए आउ तद्भिन्न विभिन्न जोनि रे प्रवेश कराई परिवर्तनीय रूप धारण कर दिए। संसार जेते क्रिया संज्ञा और भाव सबू यही शक्ति नवनव नवीन भाव अभिव्यंजित होई रूपांतरित घटे। प्रभुंकर कृपार गोटे रूप अच्छी ताकि आकर्षण रूप सर्वान आत्मन आकर्षयति श्रीकृष्ण प्रारंभ में विकर्षण रूप धारण करी आसे। विकर्षण निजर सहन सौरभ प्रकट करि थाए। जेतेबेले यही तापनी धारा रे हृदय प्रपंच संवेदन को प्रति से तार दही दिए सेतेबेले आकर्षण सृष्टि हुए। कहिबार अभिप्राय है जे जेतेबेले ईश्वर को वृत्ति प्रपंच संयोग ताप सृष्टि हुए आउ से ज्वाला को अनुभव करे जीव संसार रे से सुरभि वस्त्र राजी मध्य निज को रखि थांती। तेणु शंका संत्रास भाव जागृत करी आर्ति अवस्था से आसे। रसरे मध्य विषम ज्वाला सृष्टि हुए। स्वरूप मान रे कुरूपता मनीष अनुभव करे। जेतेबेले तापनी शक्ति त्रिताप धारा रे रूपांतरित होई संसार समस्त प्रिय परिजन मुख्य सुख ऐश्वर्य जस मान प्रतिष्ठारु विकर्षण ही आसे से परम आकर्षण धारा वर्षण कराए तन्मुखी कराए। यह कहुए इष्टानुसरण। इष्टानुसरण युग पुरुषोत्तम ही जीवन गति को कहती गुरुमुखी चलनी। गुरुमुखी जीवन प्रकृत उद्धार करता है। यही गुरुमुख भाव सृष्टि हेले जीव ऐकांतिक प्रार्थना जनाई कहे मोर निवास स्थान तांकर श्रीचरण। भूलवशत मु सुख को दुख ज्ञान करुची मु जोठी अच्छी से शांति रे नहीं प्रकाश नहीं सुख नहीं। मोते मो प्रियतमंकर मधुमय प्रदेश को नहीं जावा कहब जोठिकी से सर्वदा रुहंती। सेतेबेले एही प्रकार संकल्प प्राण तले जागी उठे। सेतेबेले तार प्रभाव रे कर्म स्रोतर मल विदूरित हुए। कृपा जननी शक्ति रूप रे धीरे धीरे अंतर्देश को पवित्र करी दियंती। यही कृपा पाविनी द्राविणी शक्ति से प्रसवणी हुई भक्ति रूप सृष्टि हुए। यह उष्टि इष्टानुसरण। प्रभुंग पति तीव्र व्याकुलतार ज्वाला रे अंत प्राण रे विरल ध्वनिर अस्थिर सृष्टि हुए। आउ परमानंदमय प्रभुंग पाई तीव्र व्याकुलता सृष्टि हुए। यही ख्यालन द्रावण और स्नेहन बिना मनीष रासायनिक प्रभाव उत्पन्न हुए नहीं। प्राणतंत्र दैवी तरंगर स्पंदन सृष्टि हुए नहीं। महाप्रभु श्री चैतन्य यही अंत प्राणर विरह भावर व्याकुलता को लक्ष्य करी कहते बहिरंगे करे प्रभु नाम संकीर्तन अंतरंगे करे प्रभु रस आस्वादन। अंतरंगर प्रभुंगर रस आस्वादन कराए। प्रभु को धरी यही ख्यालन शक्ति द्रावक और स्नेहल प्रक्रिया सृष्टि हुए। यही प्रक्रिया बिना वासना मनीष विदूरित करे नहीं। तेणु द्रव्य द्रावकर समस्त भांगी रूप को साधकर प्राण रे अनुभव कराई थाए। या प्रभुंकर कृपार अन्य नाम प्रसादनी रूप रे आख्यायित होता है। यही अवस्था रे प्रभुंक स्वरूप को अनुभव करा जाए। किंतु वासना शांत हेले भी जन्म संस्कार तो वृत्ति रही थाए ना। तेणु हृदय शुद्ध हो गले प्रभुंकर संपूर्ण रूप से विष वासना विद्युत हुई एक दिव्य रूप से रूपांतर घटे। से समय हृदय भीतर व्याकुलता दहन ज्वाला बा ताप न थाए परंतु एक संपूर्ण अनुभूति पाई आंतरिक प्रयत्न प्राण मन भितर घेरी रही थाए। यही प्रयत्न को अन्वेषणी विवेचनी अथवा विज्ञासनी कृपार नाम दिया जाए। हृदय अंतकरण रे यही अन्वेषण धारा विवेचना धारा द्वारा साधकर दृष्टि रे
ईशावास्यो यत्किंचित पश्यतां जगतां जगतर भाव सृष्टि हुए। ये जहाँ मु देखुची मो प्रभुंकर लीला विलासर विभिन्न तरंग मात्र। स्वर्गादि परि परोक्ष नुहे, वस्तुतः या अवेद्य एवं प्रत्यक्ष अपरोक्ष, किंतु अन्वेषण पथिक विवेचन स्वरूप और जिज्ञासन प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म को सत्ता ब्रह्मकर रूप को अनुभव करा हुए। जार अनुसंधान करा जाए ताहा वर्तमान मिली जाए। जीव देहरे ब्रह्मधारार मिलन एपरि जे एथिरे वियोग संयोग आउ हुए नहीं, कारण वियोग संयोगर कल्पना पाई कौनसी अवकाश मिले नहीं। से ता साथिरे सबुबले मर्जी रहता है। यही प्रभावानता हेउची ब्राह्मी धारार कृपा संचरणा। एथिरे संदेह नहीं जे कृपा जेतेबेले मिलनी शक्ति रूपरे जीव देहरे प्रवेश करे, यार नाम मोचनी शक्ति कहा जाए। अनात्म अनिष्ट द्वैत भाव एथिरे न थाए। यह एक उच्च स्तर साधना। गुरुंकर कृपा बिना मनीषर वृत्तिराज को नियंत्रण करिबार मनीषर साधनार बाहर होता है। तेणु गभीर इष्टनिष्ठा प्रतिथि अंतर भितरे उपस्थित हेले प्राणर धमनी छंदरे तांकर चैतन्यमय सत्तार पूरण हुए, जहाकु से संचारण करने पाई इलेक्ट्रिक करेंट भली शक्ति दान करती। से महत्व को रखिबा पाई तांकर सृष्टि हुए जीव प्राण भितरे एक शक्ति जहाकु कहा जाए ह्लादिनी शक्ति। से रस और रसिक और रसना को एकत्रित करी परमानंदकर धारा स्रोतरे परिणत कराई दिए। यह होची तपस्यार एक अनिवार्य अंग। परम प्रेममय शिक्षा को सेथिपाई पतंजल दर्शन कथा कहवाक जाई कहले आब्रह्मो स्तंभ पर्यंतो राजते सकलोपरि चिदानंदमय विष्टं हरेर नामैव केवल। आब्रह्म संधित बेले भूमि वृक्ष लता पशुपक्षी पर्वत नदी सूर्य चंद्रमा अग्नि समीर आकाश मन भोक्ता भोग्यो कर्म कर्ता दृश्य दर्शक द्रष्टा सबू भगवानमय हो जाए। धाम नाम रूप गुण स्वभाव दुर्जन सज्जन सबुकिछि रस स्वरूप होई परमानंदर निर्माण लीला विलासर एकमात्र उच्छ्वासात कल्पना। एई ह्लादिनी केतेबेले प्रसादिनी केतेबेले अभिसारिणी पुणी केतेबेले मानवी रूप नहीं आसे। मिलन पाई नदी परि प्रवाहित हुए। भाविनी भंजनी तर्पिणी आउ नंदिनी शक्ति रूप क्रिया करे। यही कृपा शक्ति रस विशेष प्रकाश घटे। प्रेमर उल्लास प्रीति महान नवर तरंग रूपरे या स्वरूपिणी कृपा भक्त हृदय अभेद स्वरूप क्रिया करे। प्रभु को कृपार अतिरिक्त अन्य कौन शक्ति नहीं। सर्वरूप प्रकाशित होई वो कृपालुंग भितरे भेद नहीं। आत्मा परमात्मा भेद और अभेद कृपार स्वरूपर मिलन सेतु। तेणु विश्व प्रपंचर तमसाच्छन्न समस्त अज्ञानता को दूरीभूत करी इष्ट गुरु पुरुषोत्तम मानवीय तनुरे अच्युत अनुरागर निबंधन सृष्टि करती ताहा हेउची निष्ठा। यही निष्ठा रूपक अनुराग को शुद्ध अंतकरण भितरे पितृ कृपा एवं शास्त्र कृपा द्वारा गुरु कृपा को पाइबा पाई प्रयत्न होगा उचित। सर्वत्र से ही मंगल ज्योतिर शिखा प्रज्वलित तो हुई रही थाए। कृपा ही केवल प्रभुंकर लीला विलास मात्र। यह ही हूँ प्रकृत उद्धार शक्ति। अनुभव बिना या बुझा जाए नहीं। तेणु आसतु तांकर श्रीपाद पद्म तले आज यही बहुविध तात्विक कृपा शब्दर परिभाषा जुग पुरुषोत्तम निज सृष्टिर कथारे आमे आज वंदना गाई उठी श्रीपाद पद्मंतरे प्रणाम जनाइमा जे जहा किछि मूलर स्पंदन जीवन प्रवाह जहाँ को कुए स्पंदन विहीन अस्तित्वटा केमती देखा दी। तेणु हे प्रभु हे शरणद
हे शरणद हे सत्य संकल्प हे षोडशी वल्लभ हे मोहिनी नंदन हृत्पद्म निक्वण हे भवार्तिहर हे वेद मूर्ति अप्रमेय हे जुगो पुरुषोत्तम कृपा शक्ति चक्रवर्तिनी धारको सदानंदमया पुरुष हे कृपा शक्ति चक्रवर्ती सदानंद पुरुष पर ब्रह्म जुग पुरुषोत्तम आपण सत्य संकल्प हो षोडशी वल्लभ रूप में बालसूतन धारण करी मनीष उद्धार पाई उपादान करंतु ये आधिकारिक व्यक्तित्व अधिकार करी तोड़तु आज एतिकी आपण श्रीपाद पद्म तले दिन